And I feel that's the most important thing on earth. So whatever has happened is it's a matter of past. Okay. आगे एक चैप्टर शुरू करने से पहले, या फिर क्या है, जो नए सिलेबस में चेंजेस आए वो समझाने से पहले, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रैटेजी में क्या करने वाले हैं वो जानने से पहले, बस एक चीज बोलना चाहता था दोस्तों, एंड दैट्स quite amazing because I am myself pretty amazed at that, right? So in December, my dear friends, I started my regular batch, right? And I did that after like 3 or 4 months of hard work and putting day in day out for November 23 students, right? And it came to everything, RTP डाल दिया, MTP डाल दिया, वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन का नया इनोवेशन कर दिया, राइट? डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर्स लिए बोथ हिंदी एंड फॉर इंग्लिश, मैराथॉन्स ले लिए, लास्ट डे पे मैराथन ले लिया, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, राइट? चार्ट बुक बनवा दिया 36 पेज का, ओके, बकायदा 3 महीना डाल के एक एक चीज कवर करके. And after that, guys, after putting in almost 4 to 5 months of hard work, when I launched my batch, you know how many students appeared for the regular batch, right? Let me tell you. 10 students. And I have come here in 2023 leaving a job that was well paying, where I had stakes as a co-founder in one of the leading institutes of Mumbai. And this is what I'm getting. You multiply any number with 10, it will never be, incommensurate with what I was doing, right? And I was frustrated because I'm a human, because I was like, यार क्या हुआ, what went wrong? क्यों बच्चों का प्यार नहीं मिल रहा है, या कहाँ मिसिंग है चीजें? And my dad said an amazing thing. He's also a poet. He reads a lot of Gujarati and Hindi poems. और वो जो 4 पंक्तियां थी ना, उसने मुझे बहुत हिम्मत दी. बिकॉज मैं तो यही सोच रहा था ना यार, कि मैं लगातार 5 महीनों से डे इन डे आउट डाल रहा हूं, मैं बच्चों के बारे में सोच रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, एंड ऑल ऑफ दैट. एंड दिस वॉज वेरी सिमिलर टू माई CA फाइनल जर्नी, जहां पे एफर्ट डाल रहे, एफर्ट डाल रहे, और अटेम्प्ट लग रहा है भाई. एक ऐसे स्टूडेंट को जो लाइफ में फेलियर नहीं देखा, जिसको 90% के ऊपर ही आया है, जो NM कॉलेज में था, मुंबई की सबसे बेस्ट कॉलेज. तो ये क्या है फिर? तो माय डैड सेड एन अमेजिंग थिंग, एंड ही सेड, एंड आई वांट यू टू ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम दीज 4 लाइंस every time you start questioning your efforts, right? He said, देर लगेगी पर सब सही होगा. देर लगेगी पर सब सही होगा. तुम्हें जो चाहिए वही होगा. दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं. सब्र रखो सब सही होगा. सब्र रखो सब सही होगा. और सब्र रखा. And when the results were announced, 2 things happened. Firstly, students who cleared, I have received these messages that I've never received in my 10 years of career. The amount of love that they've shared. And students who unfortunately couldn't clear, they trusted me the way you have. And in 4 days, that number crossed more than 200 students.
Yes. In terms of whatever, some bought books, some bought lectures. There are final CA students for whom I'm helping, and 200 lives were touched in 4 days. And I cannot believe it. And had it been कि मैंने फ्रस्ट्रेट होके छोड़ दिया होता ये जर्नी, क्योंकि मैं तो अप्रैल से काम कर रहा हूं, मैंने यूट्यूब चैनल भले ही जुलाई में शुरू किया हो, और हो सकता है कि कन्विक्शन ना हो अगर आपको प्रोसेस में, तो आप छूट जाते हो, तो फिर दिक्कत हो जाती बस, राइट? शायद मैं ये देख ही नहीं पाता। तो ये जो पंक्तियां बोली ना, उससे थोड़ा स्ट्रेंथ ड्रॉ करना, क्योंकि मैं उसे स्ट्रेंथ ड्रॉ कर रहा हूं दोस्त, ठीक है? दैट्स इट। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू बिजनेस, राइट? मेक सेंस? Type CA Finance in the chat box if you want to become one in the May 24 attempt. Come on. Come on. Let's do it. Type exemption in the chat box if you want to get it in the May 24 attempt. How many of you all want it? Come on, raise your hands, raise your hands, raise your hands. Yes. And I want you all, and those students, those students who've never got 50 plus in tax, I want them to aim this. माने जिनको 30, 35, 40, 45 ऐसा मिला, I want them to aim an exemption in tax. You know why? Because when in final CA I secured 15 marks and understood that mistake is not of the institute and mine, so what I wrote 80 marks का पेपर, तो आया 15, तो ठीक है। जब गलतियां देखी तब पता चला यस मेरी मिस्टेक थी, और वही 51 को जब एम किया और 49 आया दोस्तों, तब मुझे पता चल गया कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूं। मुझे जितनी क्या है खुशी इस बात की नहीं हो कि मैं सीए बना रहा हूं, मैंने उस बात की खुशी थी कि मैं 15 से 49 लेकर आया हूं। दैट्स लाइक क्रेजी 5x ग्रोथ, राइट? एंड इन जस्ट वन अटेम्प्ट। तो अगर मैं ये कर सकता हूं, तू भी ये कर सकता है। तू तो जेन जी है भाई, तू तो कुछ भी कर सकता है। तू एआई की जनरेशन वाला है भाई, तू कुछ भी कर सकता है, और ये बिलीव रखो, ठीक है? आज एक मैं छोटी सी ऑडियो भी शेयर करने वाला हूं, ओके, बाय सर अर्ल नाइटेंगल की। ये ऑडियो मैं हर रोज सुबह सुनता हूं। इट्स जस्ट अ 30-minute ऑडियो। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो, और 39 में हिंदी में एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, राइट? और विस्तार से होता है, तो वो 39 मिनट्स की ऑडियो पर हर रोज मैं सुनता हूं। एंड ट्रस्ट मी, यू डू दैट फॉर द नेक्स्ट 30 days and you will realize that this time the preparation that you're doing is very different vis-a-vis what you've done in previous attempts. Got that? Yes. Now, before I start anything, my dear friends, what is one common agenda of joining this fast track batch? Let me clear that straight up, because आज क्या है, पहला दिन है, ओके? और पहले दिन में क्या होता है, वो जिम हो या पहले दिन की क्लास हो, जुस्सा भरा रहता है। ऐसा होता है कि फोड़ डालेंगे मां कसम, होता है कि नहीं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू फील सो। लगता है कि नहीं ऐसा कि फोड़ डालेंगे मां कसम? आईसीआई के एग्जामिनर, तू पेपर सेट कर मां कसम, तू पेपर सेट कर, चीर के रख दूंगा तेरे को। ऐसे आंसर लिखूंगा, ऐसे आंसर लिखूंगा कि सजेस्टेड में मेरा आंसर शीट आएगा मां कसम। ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि नहीं? ये उत्साह होता है कि नहीं? एंथुजियाज्म होता है कि नहीं? होता है।
और यही उत्साह धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाता। तो जो हम लोग हर वीक, एवरी वीक जो मेंटरशिप सेशंस रखने वाले हैं, वो इसीलिए रखने वाले हैं कि ये उत्साह बना रहे, ये एंथुजियाज्म बना रहे। बिकॉज भाई, सिर्फ टैक्स में एग्जेम्पशन लाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है तुझे क्लियर करवाना। एंड मैं प्लीज तहे दिल से चाहूंगा, तहे दिल से चाहूंगा कि आप सब लोग दोनों ग्रुप अटेंड करें। प्लीज अटेम्प्ट बोथ द ग्रुप्स। द रीजन इज वेरी 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 सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर लेसर सब्जेक्ट्स नाउ। सर पर कितना सारा एडिशन है, कितना कुछ है, क्या है, सब में कुछ ना कुछ एडिशन है सर। हाँ है तो, हाँ तो अंडरस्टैंड, यू, नो वन हैज kept a gun point on your head, Priyanshi, to become a chartered accountant. माँ बाप ने गन पॉइंट पे रखा था क्या तेरे को? नहीं ना। किसने ये डिसाइड किसने किया है? ये डिसाइड कौन करता है कि सीए एज अ करियर लेना है कि नहीं? तूने किया है, राइट? ये डिसाइड मैंने किया था कि मुझे इतनी महंगी नौकरी छोड़नी है, स्टेक्स छोड़ने हैं और अपना कुछ करना है। क्यों? क्योंकि विजन अलाइन नहीं हो रहा था। तो सोचा एक बार क्या है भाई, कर लेते हैं। क्योंकि जब डेथ बेड पे विजुअल आ रहे होंगे ना अपनी जिंदगी की, तो रेग्रेट नहीं चाहिए लाइफ। तो मैं बस यही चाहता हूं कि आप भी रेग्रेट ना करें। तो सिर्फ जीएसटी सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उत्साह मेंटेन करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो उत्साह हर अटेम्प्ट में कम होता जाता है। वो कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत छीन लेता है आपसे, कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ बिलीफ है वो छीन लेता है आपसे। और वो सेल्फ बिलीफ को सेल्फ डाउट में कन्वर्ट होने देर नहीं लगती, और वो शायद अब तक हो भी चुका होगा। क्योंकि जब आप एक गोल सेट करते हो और बार बार लगातार जब वहां से गिरते हो ना, तो होता क्या है पता है? कि आपके दोस्तों को भी आपके भरोसा नहीं रहता, आपके पेरेंट्स में भी आपको भरोसा नहीं रहता, और शायद आपको भी अपने आप पे भरोसा नहीं रहता। क्योंकि जो उम्मीद लोग लगाए बैठे थे वो आप ही शायद, आपने ही शायद कहीं ना कहीं तोड़ दी है, फॉर व्हाट्सो एवर रीजन। एंड वर्स्ट पार्ट इज, यू नो व्हाट, कि जब दूसरा कोई सपना तोड़े ना तो ठीक है, पर जब हम खुद ही क्या है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं अपना ही सपना तोड़ने में, तो आदमी झंझोड़ लेता है अपने, टूट जाता है। एंड आई हैव बीन थ्रू दैट स्पेस। But understand, my dear friends, the only thing that could take me out of that was the victim card that we play. That has to stop. And from there, we have to become the hero of our lives. तो अभी सहमे सहमे से मत रहो, एक्सपेक्ट मत करो लोगों से एम्पथी। जब चल भी रहे हो तो डोंट रूप डाउन योर शोल्डर्स, स्टैंड स्ट्रेट like this, that you are already a freaking chartered accountant. You're already making bloody 25-30 lakhs. You are the bread earner of your family. You have taken your parents on a bloody world vacation, on a world tour. You have done all of that, what you've desired to be, and that will happen. And I'll tell you that जब लाइफ देती है ना तो छप्पड़ फाड़ के देती है भाई। The amount that I was making in my previous coaching class was twice more than my rankers friend made who passed in the very first attempt way back in May 14. Was twice that I was making. तो ये जो बोलते हैं ना कि सर अटेम्प्ट लगती है तो बिग फोर में मिलेगा कि नहीं, सर अटेम्प्ट लगेगी तो क्या है सर मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी, सर अटेम्प्ट लगा तो मेरा को कौन लेगा। अबे सुन, ये ऐसी फालतू की बात करना मत अब से वापस। क्योंकि तेरा टीचर ही सबसे बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है इस बात का कि उसको भले ही अटेम्प्ट लगी हो फाइनल सीए में, पर उसने कुछ उखाड़ा है। और लाइफ है ना, कभी भी याद रखना ऐसे नहीं होती।
It's not linear. It is like this. Anything can happen. It is asymmetric. So the actions that you take in life, your life manifests that way. Okay? और ज्ञान इसके बारे में आगे दूंगा मैं. ठीक है, अभी के लिए मुझे सबसे ये पहले क्लैरिफाई कर देना दोस्तों कि what has been the new changes, my dear friends, in your taxation syllabus. सबसे पहले बात करते हैं पहले क्या होता था. बिफोर द सिचुएशन वॉज सिंपल. 100 मार्क का पेपर है दोस्तों. उसमें पहले क्या होता था, डीटी, और दूसरा क्या होता था, आईडीटी. कितने मार्क्स का, 60, 40. ठीक है, और उसमें भी आपको पता है कि एमसीक्यूज भी होते थे, सब्जेक्टिव भी होता था. राइट. एमसीक्यूज कितने मार्क्स के थे, 30, और सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है, 70. अब ये 30 का डिवीजन पहले क्या होता था, तो एमसीक्यूज अगर देखो और सब्जेक्टिव देखो 60-40 के रेशो में ही बढ़ता था वो. तो ये जो 30 है वो 60-40 के रेशो में ही बढ़ता था. यानी कि क्या, 18 मार्क का एमसीक्यू यहां पे, 12 का यहां पे. राइट. बचा 60, तो 60 में से 20 का 40, 38, 32, 28. गॉट इट. इस तरह से बाइफर्केशन होता था. पर अब क्या सीन है. ओके, द बेस्ट पार्ट इज कि अब सीन ये है दोस्तों, खुशखबरी है कि अब ये आ गया है 50 का, ये हो गया 50 का. मां कस्सा. ओके, और मैं बता रहा हूं भाई, ये पहली दफा नहीं हुआ है. इन द रीजन इंस्टीट्यूट डज, व्हाई हैज द इंस्टीट्यूट टेकन दिस स्टैंड, व्हाई, बिकॉज आपको पता नहीं है कि इंटर सीए के पहले कॉन्सेप्ट था आईपीसीसी. आई ऑल अवेयर ऑफ दैट शिल्पी. आईपीसीसी था निया, और मैंने आईपीसीसी दिया है. मेरा आईपीसीसी का सबसे पहला बैच था. राइट. ऑल आई वांट टू टेल यू इज कि आईपीसीसी में 50-50 मार्क का होता था. इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, तब वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, वो सब था सिलेबस में. एंड तब मिनिमम जो लोग स्कोर करते हैं ना, जब आईडीटी 50 मार्क का था, माइंड यू, जब आईडीटी 50 मार्क का था, मिनिमम पीपल यूज्ड टू स्कोर वाज 65, 70, 75, 80, 85, 90. और मेरे दोस्त ने 97 लाया है टैक्स. आर यू गेटिंग इट? So the best part is that can you get an exemption? Hell yes. Should you attempt for an exemption? Hell yes. Because आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि जो भी मार्क्स आपको आया था लास्ट अटेम्प्ट में, वो किसकी बदौलत था. स्पेशली अगर आप मेरे कम्युनिटी का पार्ट रहे तो टाइप करिए इन द चैट बॉक्स. आई वांट टू सी दैट. एंड इट कैन बी एनीथिंग, but I am hoping that it was GST. Yes or no guys? Yes. Because हम लोगों ने जो भी चीजें की, वन कॉन्सेप्ट, वन क्वेश्चन, मैराथन में एक पॉइंट्स याद है वो. सिक्योरिटी सर्विस, हाउसकीपिंग, वो कैंपस के अंदर होना, गेस्ट एंकर टैक्सेबल होना, रूल 88C का होना, याद आ रहा है बेटा. ईवे बिल में जो अमेंडमेंट है, जो डिस्कस किया था कि पार्ट ए ब्लॉक हो जाता है सब, जब वो सप्लायर सप्लाई करता है, आउटवर्ड सप्लाई पे ब्लॉक होता है, इनवर्ड सप्लाई पे नहीं होता. सब आया था और सब ठोक ठोक के बोला है मां कसम, करके ना. तो आप समझो कि जब आप पहले जीएसटी अटेम्प्ट करो पर जो 50 मार्क का है, और वो 50 मार्क आप समझो अगर 1 घंटे में लिख दोगे, अपना ऑब्जेक्टिव ही वो होगा भाई. इस बार टेस्ट भी लिया जाएगा, याद रखना, मजाक नहीं है. और इस बार रिटर्न प्रैक्टिस होगी. अभी ये ओरल ओरल आप कर रहे हो ना, बंद करो ये सब.
जो भी करना है लिख के करना है, सब नहीं लिखना है, पर जो मैं बोलूं वो तो डेफिनेटली लिखना है आपको, सो दैट आपका स्पीड बढ़ जाए यार। जब आप 95 मार्क्स का भी पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो ना, इशू क्या होता है कि यार दो 10-15 एक्स्ट्रा मार्क्स, क्योंकि उतने की ही जरूरत रहती है अपने को, 40 तो सबको आ ही आता है भाई। आपका क्या है, 40, 50 और 50 से 60 लिखी जाएगा। एंड द रीजन इट विल बी इजियर बिकॉज इस बार दोस्तों हम लोग टारगेट ही ये रखना है कि 50 मार्क का जो जीएसटी है वो आ जाना चाहिए विद इन 1 आवर, जिसमें आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं और सब्जेक्टिव भी आप समझो। उसके बाद अगर 50 मार्क के लिए आप डीटी अटेम्प्ट कर रहे हो, जहां पर क्या होगा बताइए, 15 मार्क का तो बेटा सिर्फ एमसीक्यू है, और रिमेनिंग 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, जिसमें एक क्वेश्चन तो पक्का पीजीबीबी का ही आता है, वो पता है आपको, पहला वाला। तो जब इतनी चीजें डिफाइंड है तो अब आपको ऐसी इंस्टीट्यूट ने तो पेपर करवा ही दिया, ऐसे पहले से बता ही दिया है कि आने वाला, तो अब क्या दिक्कत है फिर। हाँ थोड़ा जीएसटी का पोर्शन बढ़ा है, पर वो मैनेजेबल है, वो हो जाएगा, आपसे मैं बता दूंगा, मैं रखवा दूंगा बे वर्बैटम। क्योंकि जब वाइवा सेशंस लिए जाएंगे बच्चों, एंड आई वांट यू ऑल टू शो अप इन दैट, ट्रस्ट मी, स्कूल की याद आ जाएगी। बिकॉज व्हेन आई आस्क यू मुस्कान कि ये सप्लाई टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट, और तूने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर गलत जवाब दिया ना, तो याद रखना वो डांट हमेशा याद रहेगी, और तू कभी नहीं भूलेगी कि मैंने वाइवा में वो चीज गलत दी है। क्योंकि गाली पड़ेगी ना जब, तो याद रहता ही है बेटा वो। एंड आई टेल यू इट वर्क्स इवन मोर जब मुस्कान ने गलत आंसर दिया है और शायद गुनगुन को आंसर राइट आता था, तो गुनगुन को ये याद रहेगा कि मुस्कान ने आंसर गलत दिया था पर मैंने सही, तो मुझे याद रहेगा वो चीज। क्योंकि जब दूसरा गलती करता है ना, तो और भी याद रहता है, राइट। और वो जब क्या है, एक कम्युनिटी फीलिंग अपनी आएगी कि यार एक ऐसा भी वाइवा सेशन होगा जहां पे कोई भी हो, शिल्पी हो, निया हो, मुस्कान हो, प्रियांशी हो, सुमित हो, भाविक हो, छवि हो, सब लोगों ने सही आंसर दिया है, तब मजा आएगा और तब मैं पार्टी दूंगा, ठीक है। यस, कुछ कुछ ऐसा करेंगे जिससे क्या है, वो स्पेशल फीलिंग हमेशा लाता है यहाँ पर, और उससे और यही चीजें आपका उत्साह बढ़ाएगी। क्योंकि जब एक सब्जेक्ट में भी है ना कॉन्फिडेंस आता है ना बच्चों, एक सब्जेक्ट में भी कॉन्फिडेंस आता है, तो जस्ट रिमेंबर वन अमेजिंग थिंग दैट आई जस्ट रियलाइज दैट हाउ यू एनीथिंग is how you do everything. तो शायद अगर आप अपनी शूलेसिस सही से टाई नहीं कर रहे हो, हमेशा खुली रहती है, या अगर आप अपने बेड के उठने के बाद, ओके, यू डोंट मेक योर बेड, यू नो, आपकी जो चादर है या जो तकिया है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, या बहुत मेसी होता है शायद आपका वार्डरोब, understand there is a pattern, and the pattern is that you keep leaving things incomplete. और इसीलिए ये पैटर्न आपको अपने पढ़ाई में भी दिखाई देगा, जहां पे आपने पक्का जीएसटी में भी कुछ छोड़ा होगा और डीटी में भी कुछ छोड़ा हो। क्योंकि एक सीए एस्पिरेंट क्या करता है पता है, सीए एस्पिरेंट का इंक्लूडिंग भी एक बहुत बढ़िया क्वालिटी, पोर्शन तो आईसीआई दे देता है, पर डिसाइड वो करता है कि पोर्शन क्या होगा। कि पढ़ के तो इतना ही जाऊंगा यार, ठीक है, एंड फिर रोना आता है। और फिर और होता क्या है, सबसे बढ़िया मिस्टेक क्या होती है पता है, कि जो चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ी है वो इस टाइम भी छोड़ेंगे। ऐसा हुआ है कि नहीं, स्पेशली पीपल हु हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू अग्री टू मी, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल लॉ में
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ा था, क्योंकि मुझे याद है मैंने छोड़ा था, तो आपने वो दूसरे अटेम्प्ट में भी छोड़ा, बिकॉज आई हैव डन दैट इन माय सीए फाइनल इन माय कॉस्टिंग एग्जाम, कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ा था तो छोड़ा है भाई, फाइनल में भी है कॉस्टिंग। नहीं समझ में आता था एक्चुअल, तो मैंने टाइम भी नहीं खपाया। आई रिमेंबर आईबीसी करके था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, फाइनल सीए में है, तो वहां पे मुझे याद है कि मैंने जो अटेम्प्ट में छोड़ा था, नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी छोड़ा था मैंने। क्यों पता है? क्योंकि हम वो कंफर्ट जोन के आना ही नहीं चाहते, और फिर क्या होता है पता है, हमको पता है कहीं ना कहीं कि वही मिस्टेक वापस दोहराई जा रही है, तो फिर कैसे वो रिजल्ट को हम लोग अलग एक्सपेक्ट करें यार। दिस टाइम यू हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मेक सेंस? ओके, तो द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू बेसिकली कन्वे इज दैट अगर एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, दैट विल रेप्लिकेट एंड हैव अ डोमिनो इफेक्ट इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, राइट? So make sure that you show up every time there is a meeting as much as you can. And also one caveat that I wanted to give on my end, which I am telling to all the students for all the subjects, and I will not shy away from saying that, okay, yes, you have taken fast track batch, right? But two things, remember that, and I will not hesitate in saying this: attend only those lectures live where you think कि यार ये मेरे से होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पशन चैप्टर है, मुझे पता है कि यार मेरे से इतना नहीं होगा, मुझे सर की मदद चाहिए, सर की एनर्जी चाहिए, सर का एंथुजियाज्म चाहिए, तो आप बैठ मेरे साथ, राइट? पर अगर तुझे लगता है कि यार बाप करवाया था सर ने लास्ट टाइम, एग्जाम्पशन मेरे से हो जाएगा, तो खुद निपटा ले, क्योंकि ये मैं एट एनी डे बोल सकता हूं कि तू सेल्फ स्टडी करेगा और मैं पढ़ाऊंगा, उसमें फर्क तो होगा। टाइमिंग का डेफिनेटली फर्क होगा, अंडरस्टैंडिंग का नहीं, पर टाइम का डेफिनेटली फर्क होगा, राइट? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या कर सकते हैं आप या तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं 2x पे, 1.5x पे, जो आप जनरली करते हो, या फिर आप खुद ही सेल्फ स्टडी कर सकते हो उसे। तो आप अटेंड वही जुडिशियसली लेक्चर्स करिए कि कोई शायद फैकल्टी ना बोले, बिकॉज एवरी फैकल्टी वांट्स टू सी लाइव स्टूडेंट्स, लाइव लाइव लाइव। और उसका रीजन है क्योंकि उससे टीचर का डोपामिन बढ़ता है कि यार इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हो, राइट? पर अब क्या इतनी बार ले लिया है, माँ कसम, क्या है, कंटेंट क्रिएटर भी है आपके सर इंस्टाग्राम पे, तो इतने वीडियो ऐसे ही बनाए विदाउट समवन बीइंग प्रेजेंट कि भाई अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर कोई बच्चा आएगा भी नहीं ना, तो मैं मेरे इंटर्न को बोलूंगा लॉग इन कर बेटा ठीक है, मेरे पास तरीके हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि देख, जो सब्जेक्ट में तुझे, जो टॉपिक में जीएसटी में स्पेसिफिकली, राइट, और ये अभी क्लियर कर देना चाहता हूं, जहां पे तुझे लग रहा है कि यार ये बाप आता है, फॉर एग्जाम्पल टाइम ऑफ सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल टाइम ऑफ सप्लाई, तो मत अटेंड कर, खुद अपने एंड से कर। दूसरा, अगर वो अपने एंड से नहीं हो रहा है तो फिर रिकॉर्डेड देख, क्योंकि उसमें फटाफट से हो जाएगा। तीसरा, नहीं हो रहा है तो लाइव, ठीक है? Am I completely discouraging you from life? No. But I'm telling you that this is the way in which you can prepare your preparation faster. Survive, because मुझे मेरा स्वार्थ नहीं देखना है, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि तू कैसे एडिशनल क्या है सिलेबस आया है एडवांस अकाउंट्स में, स्पेशली अगर तूने ग्रुप 2 नहीं पढ़ा है तो ग्रुप 2 के एडवांस अकाउंट्स के एएस, राइट? दूसरा, लॉ में 2-3 चैप्टर है वो। फ्रैंकली लॉ में अगर आपको नहीं पता तो आई जस्ट स्पोक टू शुभम सिंगल सर, तो ही इज अ गुड फ्रेंड एंड ही टोल्ड मी दैट कि एलएलपी जो है, ओके, एलएलपी जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका फाउंडेशन का है, राइट? उसमें थोड़ा एडिशन है पर वो फाउंडेशन का है, राइट? फेमा भी है और एक चैप्टर है अपना फॉरेन कंपनी, तो दे आर ऑल मैनेजेबल। अगर आप क्या है उनका क्या है, कुछ भी रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो या वट एवर, फटाफट से हो जाएगा। तो डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट जो था वो निकल गया है, वो अपना वो आईसीए है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो साला कभी समझ में ही नहीं आया मेरे को, ओके?
तो ये वो बिल ऑफ बिल्स रिसीवेबल, ये मैंने बोला कौन कौन कर रहा है भाई, सब तो यूपीआई कर रहा है भाई, कैश कर रहे हैं, माँ कसम चेक कर रहे हैं, ये क्या नया कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई. So that's it. Okay. So just make sure that you do that and rationalize your preparation with this, because as I said, जीएसटी तो ठीक है हो जाएगा, पर मेन फोकस है अपना कि इंटर सीए क्लियर हो जाए. ठीक है. डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स? राइट. तो मैं स्पेसिफिकली आग्रह करूंगा कि जो क्या है, जहाँ पे अमेंडमेंट्स होंगी वो चैप्टर्स में पहले से ही, क्या आपको कल क्या करने वाला हूँ, आज जैसे मैंने क्या एक एजेंडा लिखा था वो एजेंडा पहले से ही बता दूंगा, सो दैट द डिस्क्रिप्शन इज ऑट योर एंड कि तुझे क्या करना. ओके. सेकेंड, फटाफट से, एज आई सेड, टू फास्टन योर प्रिपरेशन यूज दिस स्ट्रेटेजी. ओके. एंड थर्ड माय डियर फ्रेंड्स इज वेरी 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 सिंपल, कि आईडीटी की जब क्या है, अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको पता है अभी 50 मार्क ऐड क्या हुआ है, फटाफट से, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर ऐड हुआ है. चेंजेस बता रहा हूं. टीडीएस ऐड हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये इसका नाम भी शायद आपने सुना होगा. ओके. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51, टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 52. ये हम लोगों ने शायद बात सुनी थी कहां पे, बताइए? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में ये कॉन्सेप्ट सीखा है हम लोगों ने, राइट. पर वो डिटेल में आ गया है अभी, राइट. ये आरसीएम में भी था, इफ यू ऑल रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम में भी था, राइट. सिक्योरिटी सर्विस, जीटीए सर्विस. ओके. एंड द लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. तो दीज आर 4 चैप्टर्स जो एब्सोल्युटली नए हैं. इसमें सबसे डिफिकल्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी कई बार ऊपर से जाता है. ठीक है. क्या पूरा सर इंपोर्ट किया फाइनल सीए से? नहीं, पूरा नहीं किया. देयर आर कपल ऑफ सेक्शंस दैट वी हैव लेफ्ट व्हिच आर ओनली फॉर फाइनल सीए, वरना फाइनल और इंटर का पूरा ही ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेबस सेम हो जाता. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पार्ट माय डियर फ्रेंड्स, टीडीएस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर छोटा है पर इसका आराम से 5 से 6 मार्क का क्या क्वेश्चन बन सकता है. टीसीएस अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें रिसेंट अमेंडमेंट आया है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कॉल्ड ओएनडीसी, which is called the UPI of e-commerce operators, right? And accounts and records. Now, this is a chapter which might be coming mostly in MCQs. इसका मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, बिकॉज सब्जेक्टिव के लिए these 3 chapters are enough. And the reason I am trying to emphasize them is because ICI का पैटर्न अभी रिसेंटली बहुत चेंज हुआ है. ICI के पैटर्न में मैं पहले बताता हूं आपको, and it has changed since 2019, right? उसके पहले क्या होता था पता है? उसके पहले ये होता था फ्रेंड्स कि आज फॉर एग्जांपल जनवरी फर्स्ट वीक में, अभी 1 जनवरी को ही दोस्तों क्या है, अमेंडमेंट स्टैट्यूटरी अपडेट्स आए हैं आपके 1 जनवरी को, विच आर रेलेवेंट फॉर विच अटेम्प्ट, May 24 अटेम्प्ट. फेयर इनफ. ओके. तो ये जो अमेंडमेंट्स May 24 के लिए ना, वो May 24 में कभी पूछे ही नहीं जाएंगे, वो नवंबर 24 में पूछे जाते थे. पर ऑफ लेटली, एज आई सेड, सिंस May 19, ये दिखने में आ रहा है कि यार May 24 का अमेंडमेंट वो May 24 में ही पूछते हैं. तो May 24 में जो नए एडिशनल चैप्टर्स है उसका भी उतना ही बहुत ग्रेटर चांस है आने का, स्पेशली प्लेस ऑफ सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस, इसका पक्का आपको क्वेश्चन दिखेगा. एंड अलॉन्ग विद देम ऑब्वियसली द अमेंडमेंट्स दैट हैव रिसेंटली अनाउंस्ड, जो 40 पन्ने के अमेंडमेंट्स है दोस्तों, राइट, जो आए हैं आपके. तो अमेंडमेंट्स आए हैं सप्लाई चैप्टर में. ओके. अमेंडमेंट सप्लाई चैप्टर में क्या है दोस्तों? वेरी सिंपल. याद है आपको बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी? अभी रिसेंटली आपको पता है ये अश्नीर ग्रोवर तो पता ही होगा बेटा, पूरे हिंदुस्तान को पता है. वो उसके बयान बहुत आ रहे थे, वो हर्ट हो गया था क्योंकि उसने धंधा चालू किया और गवर्नमेंट ने उसका धंधा बंद कर दिया. सर कैसे? ऑनलाइन गेमिंग. Dream 11 पे बेटा टीम बना रहा था ना. यस.
और 28% जीएसटी लगा दिया, ठोक ठोक दिया बेटा इनको सीधा। बोला जुगाड़ खेलना ही है मां कसम, तो दे दो 28%। पूरी इंडस्ट्री की क्या है, बैंड बजा के रख दी है मां कसम। ठीक है, क्या बोलूं अभी मैं आपको, नॉनसेंस। ओके, तो उसके रिलेशन में क्या है, जीएसटी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, तो वो क्या है केटर करेंगे दोस्तों। चार्ज ऑफ जीएसटी, इफ यू ऑल रिमेंबर 9 सबसेक्शन 5, टाइप इन द चैट बॉक्स 95, क्या याद आता है सबसे पहला वर्ड, क्या याद आता है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो प्रमाण दोगे आप दोस्तों, मेरे स्टूडेंट होने का प्रमाण चाहिए मुझे कि था तू अर्जुन, सॉरी एकलव्य, क्योंकि तूने मुझे देखा नहीं, सॉरी तूने मुझे देखा, मैंने तुझे नहीं देखा। यस इट्स ईसीओ, एब्सोल्युटली करेक्ट, लवली, राइट। तो ईसीओ में दोस्तों क्या है, दो अमेंडमेंट आए हैं, एक रेस्टोरेंट सर्विस का क्या है अमेंडमेंट है, और दूसरा ओमनी बस करके एक है। ओके, जो रेड बस ऐप है आपका दोस्तों, उसके रिलेशन में एक क्या है मेजर अमेंडमेंट है, विच आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग। प्लेस ऑफ सप्लाई, लो कर लो बात, नया नया चैप्टर, नया नया ताजा ताजा बेटा अमेंडमेंट है। ओके, उसके अंदर भी मां कसम क्या ही बोले बेटा। ओके, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी है दोस्तों, यस एग्जेम्पशन में है अमेंडमेंट्स, बहुत सारे नहीं है, थोड़े हैं, सो इट विल इजीली बी टैकेबल। उसके एग्जांपल्स भी क्या है, क्वेश्चन बना के मैंने ड्राफ्ट कर दिए हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो अमेंडमेंट है दोस्तों, वो आपके लिए फ्रैंकली स्पीकिंग क्या है बेटा, इररेलेवेंट, क्योंकि वो अमेंडमेंट हुए हैं वैल्यूएशन रूल्स के अंदर। ठीक है, जो आपको नहीं है थैंक गॉड, वो क्या है बेटा फाइनल सीए में। मां कसम रजिस्ट्रेशन में बेटा अमेंडमेंट्स एक से एक है अमेंडमेंट। रूल 10A के अंदर है दोस्तों, रूल 10A याद है आपको, फर्निशिंग बैंकिंग डिटेल्स, उसका एक टाइम लिमिट था, वो टाइम लिमिट बदला गया है। अच्छा, फिर याद है आपको वो चीज जहां पे हम लोगों ने बात की थी कि अगर जेठालाल का एग्जांपल दिया था मैंने, कि जेठालाल आज फॉर एग्जांपल लोकल धंधा कर रहा है 10-15 लाख का, पर वो जब डिसाइड करता है कि उसको फ्लिपकार्ट के थ्रू या अमेजोन के थ्रू बेचना है, यानी इफ द पर्सन सप्लाइंग गुड्स सीओ थ्रू ईसीओ बेटा, अगर वो बंदा क्या है ईसीओ के थ्रू माल बेचना चाहता है, तो उसका नाम लिखा है, याद रखो याद रखो, कहां था नाम, उसको कोई टाइप का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। क्या वो 40 लाख के लिए वेट करेगा, या फटाक से उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। बोल मेरे बंधु, बंधु मेरे बंधु, टेल मी, टाइप करो इन द चैट, क्या याद आ रहा है आपको, या कोशिश करो भाई, कोशिश करो, वॉलेंट्री नहीं, बहुत बहुत नजदीक हो आया ना आप, करेक्ट, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, एक ना, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो अब वैसा नहीं है, अब बोला है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन तू भी क्या है अमेजोन के थ्रू माल बेच जा, पर एक ही रिस्ट्रिक्शन पता है क्या, कि रजिस्ट्रेशन तू नहीं लेगा चलेगा, तू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे के बाहर चला जाएगा, पर वो अमेजोन के थ्रू जो माल बेच रहा है वो तभी बेचना जब विद इन द स्टेट हो। तो विद इन, आज हो सकता है ना यार, मैं मुंबई में हूं और मुझे, अरे आप समझो फॉर एग्जाम्पल, मुंबई छोड़ो, मैं हूं गाजियाबाद, कहां आता है गाजियाबाद, यूपी। अभी आपको पता है दोस्तों यूपी का पॉपुलेशन कितना है, 22 करोड़। पाकिस्तान का पॉपुलेशन कितना है बेटा, 19 करोड़। तो बेसिकली वी हैव अ कंट्री विद इन अ कंट्री। तो आप समझो कि उसको अगर यूपी में ही माल बेचना है तो भी कितना बड़ा मार्केट है यार कंज्यूमर का, करेक्ट, करेक्ट, यस, एंड दैट इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स आई एम एड्रेसिंग एट, कि यार उसको क्यों फिर आप क्या है ये झोल झपाटे में डाल रहे हो कंप्लायंस की। तो जो बंदा क्या है ईसीओ के थ्रू माल बेचना चाहता है, पर ओनली विद इन द स्टेट, उसको बोला तू रहने दे, चले थोड़े प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे फॉलो, पर चलेगा, तू रजिस्ट्रेशन मत ले। नाउ दिस कैन अंडरस्टैंड वेरी मच एम्पावर whom, those unregistered suppliers, and actually can motivate them to sell more। and गवर्नमेंट का ये थॉट देखो क्या था, थॉट ये था
ये बंदा अगर अमेजोन के थ्रू भी बेच पा रहा है, इसकी बिक्री ज्यादा होगी, क्योंकि अब कोई भी उसका प्रोडक्ट देखेगा अमेजोन पे ऑर्डर कर लेगा, उसका सेल्स बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा, अरे आज नहीं तो कल 40 लाख मार ही देगा ये, और फिर रजिस्टर करो। समझा? ये थॉट था कि यार ऐसा मत करो, उसको घबराओ मत इतना, करवाने दो उसको। तो विद इन द स्टेट अगर हो रहा है, बेच रहा है अमेजोन के थ्रू, तो रजिस्टर मत कर। हाँ, पर अगर बाहर बेचना है तो फिर तूने बेटा ऑक्स के ऊपर की बात कर दी, अब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर इंटरस्टेट मारना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। ठीक है, टैक्स इनवॉइस में दोस्तों आपकी लिमिट ई इनवॉइस की अब चेंज हो गई है। पहले कितनी थी इनवॉइस की लिमिट? टाइप करो इन द चैट बॉक्स बेटा। द रीजन आई एम आस्किंग यू टू टाइप इन द चैट बॉक्स इज, यू नो व्हाई, especially these technical questions, because I want to help you realize, remember and feel confident कि यार कुछ तो याद है जीएसटी, कुछ तो याद है जीएसटी। ओके, कितना नील? 10 करोड़, एब्सोल्युटली क्लियर, यस। पर अब दोस्तों 10 करोड़ का हो गया है कितना? 5 करोड़। ठीक है, तो उसमें है एक अमेंडमेंट और छोटा मोटा अमेंडमेंट और है ई इनवॉइस में, वी विल सी दैट। पेमेंट ऑफ टैक्स में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट, दैट नीड्स टू बी केटर्ड एंड दैट विल बी केटर्ड व्हेन वी कम टू दैट। टीडीएस और टीसीएस में मैं बोलूंगा, टीसीएस में एज आई सेड देयर इज अ वेरी बिग अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इमरजेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओएनडीसी। कहाँ चले गए भाई? हाँ, ओएनडीसी। एंड द लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स रिटर्न्स। इसमें जैसे इफ यू ऑल रिमेंबर 88C करके एक नया रूल आया था, वैसे ही 88D करके एक नया रूल आया है, तो वी विल केटर टू दैट इज। ठीक है, हो जाएगा दोस्तों, आराम से हो जाएगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो नेक्स्ट अपने दोस्तों होने वाले हैं 20 दिन टिल 5 फरवरी, आपका पूरा जीएसटी पुख्ता हो जाए, वर्बैटम हो जाए, और आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा। सो आई वांट दैट बाय जैन एंड 90% of the GST is finished, and at the same time, okay, if possible my dear friends, if possible, I really want, okay, that by 31st of Jan, okay, मेरा टारगेट ये है कि आप टैक्स खत्म कर दो और एडवांस अकाउंट्स, आपका जो नया सब्जेक्ट अभी आया है उसको खत्म कर दो, और लॉ के 3 नए चैप्टर जो है वो खत्म कर दो। यू ऑल थिंक दिस इज अचीवेबल गाइस? मैं सिर्फ इतना याद दिलवाना चाहता हूं बेटा, तूने ये एक एक दिन में उड़ा है सब्जेक्ट। समझा तनिष्का, अक्षिता, असिया, दृष्टि, नरेश, पूजा काटेकर, ये तूने कितने दिन में उड़ाया है? एक दिन में या 2.5 दिन में। ठीक है, तो तू कर सकता है, तेरे पास आज से लेके 16 दिन है, 16 डेज। तो जीएसटी की तेरे को टेंशन लेनी है नहीं, तेरा वो क्लास में ही हो जाएगा। ओके, तेरे को टेंशन लेनी है डीटी की। डीटी में सिर्फ अमेंडमेंट्स आए तो अमेंडमेंट्स को देख लेना, दैट्स इट। दूसरा सब सीन सॉर्ट है तेरा। ठीक है, और अगर डीटी में कोई चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल, ओके, मेरा यही आग्रह रहेगा आपसे, अगर डीटी में कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, स्पेशली अगर वो हेड्स ऑफ इनकम में से, तो उसको अच्छे से पुख्ता कर ले इस बार। स्पेशली पीजीपी, पीसीजी और ये सब है, इसका पक्का क्वेश्चन आता है। एक जीएसटी अगर ईमानदारी से करेगा ना, तो डीटी में कहीं ना कहीं स्कोप होगा कि कुछ छोड़ सकता है। ठीक है, और जीएसटी छोड़ना इसीलिए नहीं है बिकॉज वो 110 सिलेबस है बेटा आपके डीटी का, पर मार्क्स सेम है। तो लेट्स स्कोर एन एफर्ट लेस एंड मेक मोर मार्क्स। डज दैट मेक सेंस? कैन वी सेट दिस टारगेट फॉर 31st Jan? क्या सबकी सहमति है इसमें? रेज योर हैंड्स इफ यू ऑल अग्री टू दिस।
Raise your hands. Come on, raise your hands. Yes, I want everyone to raise your hands. और ये कुछ ऑप्टिमिस्टिक नहीं है भाई. अकाउंट्स तूने किया है सॉल्व, लिख के किया है लास्ट अटेम्प्ट में. भरोसा रख अपने आप पे. हाँ कुछ गलतियां होंगी, हाँ मार्क्स भी ऐसे होंगे जो एक्सपेक्टेड नहीं है, स्पेशली इन कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स. ये देखा है मैंने कि बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है 60-70 प्रीतेश, और पता चल रहा है उसको मिल रहा है 25-30-35. हुआ है कि नहीं प्रीतम, सार्थक, समक्ष? हुआ है राइट. पर ठीक है, अरे उसका दैट डज नॉट टेक अवे द फैक्ट कि तूने क्या एफर्ट नहीं मारा था. तू बस एक काम कर सुमित, आरटीआई की कॉपीज मंगा ले. बिकॉज आरटीआई की कॉपीज मंगाना जरूरी इसीलिए दोस्तों क्योंकि आज जब आप कोई नई चीज शुरू कर रहे हैं ना तो दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये तो सब भगवान भरोसे. नहीं, जब चीजें ऐसे लगने लग जाती है ना कि ये भगवान भरोसे और अपने हाथ में नहीं है, तब एफर्ट डालने की इच्छा ही नहीं होती है. टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू ऑल अग्री टू दिस कि यार कॉस्टिंग और अकाउंट्स में ऐसा मार्क्स दिया आईसीआई ने, कैसा लग रहा है क्या ये मेरा पेपर क्या? 2 बार तो मैंने रीड किया माँ का सम रिजल्ट मेरा. आर दे टॉकिंग अबाउट मी ओनली श्रियम? बिकॉज आई फेल्ट द सेम इन इसका कि यार 80 मार्क का पेपर माँ कसम लिखा है, 15 मार्क कैसे दे दिया यार? 15 मार्क, सच अ डिसग्रेस. और वो भी एक ऐसा क्या है सब्जेक्ट था जो मैंने मेरे दोस्तों को पढ़ाया है, बाकायदा पढ़ाया है यार, लाइक पढ़ाया है, घर में बुला बुला के पढ़ाया है, और उसमें 15. तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था 51 है, पर नहीं, मैंने की थी मिस्टेक्स. आंसर क्वेश्चन तो सही होता है बेटा, आंसर गलत होता है आपका. क्वेश्चन तो इजी होता है, पर भेलपुरी सेवपुरी बना के आ गया था मैं मां कसम. ठीक है, ये सीन था. तो पहले गलतियां देख, क्योंकि गलती तो हुई होगी, पर्सनल वेंडेटा तो है नहीं बेटा, राइट. तूने कोई लफड़ा तो किया नहीं है एग्जामिनर की बेटी या बेटे के साथ, ठीक है, कि कोई पर्सनल वेंडेटा निकाले तेरे अगेंस्ट, बराबर. ठीक है, तो तू टेंशन मत ले, पहले वो चीज कर ले सो देट तेरे दिमाग से ये चीज हट जाए कि गलत. और फ्रैंकली अगर कहीं मार्क्स नहीं दिए तो अच्छा है ना, करो फाइल. और मार्क्स नहीं दिए तो वो मार्क्स तो अवार्ड होते ही है अपने को. सिंपल, फेयर एंड स्क्वायर. या तो तू गलत है और या तो तू सही है, एटलीस्ट उसका निष्कर्ष पे तो तू पहुंच जाएगा, कंक्लूजन पे तो पहुंच जाएगा. एंड आई फील नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट. डज दैट मेक सेंस? ओके, ठीक है. तो ये अपना लार्जर गोल है 31 जैन तक का, जिसको हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे हर हफ्ते दोस्तों. ठीक है, इसका टाइम टेबल भी क्या होगा वो डिटेल में विस्तार से दोस्तों क्या है मैं आपको कल बताने वाला हूं कि क्या टारगेट सेट्स कर सकते हैं अपन एंड अकॉर्डिंगली कैसे आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, परफेक्ट है. आईडीटी में इस बार दोस्तों हमें स्कोर करना है 3 जगहों में, दोनों में, एमसीक्यूज में और सब्जेक्टिव में. बट अपना टारगेट यही है 1 घंटा 50 मार्क. और ये जब पेपर लिखेंगे ना तब पता चलेगा स्टॉप वॉच के साथ कि इशारा किस बात की तरफ है, कहां तक पहुंच रहे हैं अपन. और ये सीन सेट हो गया तो खत्म बात. फिर यू आर स्कोरिंग नॉट लेस देन 75. ट्रस्ट मी ऑन दैट. बिकॉज इस बार याद रखना May 24 में आपका डीटी का पेपर भी इजी है, और जीएसटी में बोल रहा हूं कि जितना भी डिफिकल्ट है मजाल है तेरे लिए, ऐसा प्रिपरेशन हम लोग करेंगे कि भाई तू जब एग्जामिनर हॉल के बाहर आएगा तुझे लगेगा डीटी तो इजी था ही, जीएसटी तो मक्खन था ही, दोनों इजी, खत्म. 75. और 75 अगर आ गया, 75 आप समझो कि अगर आ जाता आपको एक पेपर में, यू हैव 25 मार्क्स एक्स्ट्रा which can help you in law, which can help you in accounts, and 5-10 मार्क बेटा ज्यादा रह गए, अगर वहां 50-50 आया तो अगले ग्रुप में भी हेल्प कर सकता है. तो सेट ऑफ का भारी बेनिफिट है इस बार. समझ, एक सब्जेक्ट में भी ऊपर आ जाता तो सीधा 5-10 मार्क नेक्स्ट उसमें आ जाता है आपके बचाने को. पहले क्या था, 4 था ना तो वो 4 में बढ़ जाता था, पर इसमें 1 में भी आ गया तो सीधा क्या है. और कॉस्टिंग तो किया है आपने यार, एफएम एसएम में सिर्फ एसएम को संभालना है आपको, एफएम को संभालना है. एसएम तो ऐसे ही रीड कर लो बेटा, ओसी ही है वो. नॉट डिमीनिंग द सब्जेक्ट, पर इट इज हैंडल्ड, इट कैन बी हैंडल्ड. आई डोंट वांट टू साउंड लाइक यार
I don't want to sound someone like यार CA is easy and 12th एग्जाम, समझा? क्योंकि यार वहां पे भी यार कोई फैकल्टी पढ़ा ही रहा है मेहनत करके यार, ऐसे बोल रहा हूँ आप कर सकते हो, पढ़ के कर सकते हो आप। तो हैंडल एफएमई करना, और एफएमई भी जो डिविडेंड डिसीजन है, जो आपका ये है अपना बिल्स रिसीवेबल है, कैश बजट है, वो सब अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपका, वो सब क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं, आई एम सो सॉरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट, वो केडी के और वो सब, तो दैट्स मैनेजेबल। मेन डिफिकल्ट उसमें कैपिटल बजटिंग ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर शायद। तो जो चीज इजी है ना, उसका रिकॉर्डिंग मत, उसका ना लेक्चर देखना ना रिकॉर्डिंग, खट 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 चालू कर दे। अपना क्या प्रॉब्लम होता है पता, मैं सिर्फ एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब अपन क्या है फेल होके आते हैं ना, तो अपने को क्या लगता है अपन ने सब गलत किया है। और अपन अगर ऐसा समझ लेते हैं ना सब गलत किया है, तो अपन सब क्या है रेक्टिफाई करने जाते कि हालो हाल सभी क्या है चैप्टर्स का क्या है अपन चालू कर देते हैं, क्या रिवीजन, सबका लेक्चर खरीदो। अरे इतना टाइम ही तेरे पास, तो अगर डीटी में जो टॉपिक्स डिफिकल्ट है उसी का लेक्चर देखो, वरना निपटा भाई, तूने किया है समझ, और सबसे जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है वही शुरू कर, ठीक है, डन। तो आईडीटी में दोस्तों क्या चेंजेस आए हैं वो मैंने बता दिया आपको, with respect to marks, with respect to syllabus, and with respect to the new amendments that are in the new chapters, which easily will be handled, ठीक है। अब let's get back to business। आज थोड़ा relatively easy chapter करेंगे, and that is my favorite, charging section। yes, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन शुरू करते हैं दोस्तों। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, और आपको पीडीएफ के अंदर ही, मैंने समरी बुक के अंदर ही दोस्तों एक इंश्योर किया है कि जिस पार्ट के लिए अमेंडमेंट आया है ना, उसके रिलेटेड में क्वेश्चन भी वही डाल दिया मैं, सो दैट ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ो, नीचे वो कॉन्सेप्ट को टेस्ट करो एंड एंड इट। गॉट दैट राइट? सो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, शुरू करते हैं एक नया चैप्टर सीजीएसटी एक्ट के अंदर। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9।